Yes is here. Yes, sir. So can you give the demo? Yes, sir. I have doubt in two queries. Rest I can show you. Two queries you have doubt. Yes, sir. So should we go for those two queries? Yes, sir. First, I would So, like if you would explain those two. so just I have to see the manual. This is the manual, and here we have this is experiment, and this is the database. So manual is visible at your end. Yes, sir. Yes. Okay. So which query you have problem? All Sir, student. query number 3 and 15. Query number 3 and 15. 1 5. 15. Other student can also say which queries they have problem so that we can go directly to that query. Yes. In addition to these two, 3 and 15, any other query? Kunal, you have executed not all the queries. So I think you have executed 4 or 5 queries. Kunal is here. Yes, sir. How many queries you have completed? Sir, some are left, sir. Like I have Some completed is not seven. good answer, big answer. Sir, 5, 6 are left, sir. So can you tell what are those queries so that we could also include here? Sir, the last ones, sir. Last one is the 15th. Sir, the last one, sir. I'm Last one is 18th. no, sir. The in sequence wise, sir. I'm doing. Sequence wise. Actually, we have two parts of the queries. Yes, sir. First, we have 4 queries, and then we have 18 queries. So, which query? Sir, I have done to sir 10th of the sir in the second part, sir. 10? Yes, sir. I have done till now, and sir, there are. You are not ready for studying here. Yes, sir. So, I should go to next student. Yes, You sir. should be ready. What work you have done and which work is pending, and how we should be benefited from the lab class. Okay. Okay, sir. So that I was intended to ask you, but you are not responding properly. So yes, you have written only one query. So 3 I and have 15. written. 3 and Yes, sir. 15. Yes, sir. 3 and Okay. 15 are my doubts. Rest Okay. are all are Mohit done. is not here. So I should go to next student. Jitendra, Ajay, and Ritik. Jitendra, Sir, I have doubts in query 3rd, 10th, and 15th. same 3 and 15. 3 Any and other 10. query? Sir, 10th. 10 also. Okay. Yes, sir. Then Ajay, Ritik, किशन। बताओ भाई, आप लोग ज़्यादा टाइम खराब नहीं करो, आपको केवल ये बताना भाई किसमें प्रॉब्लम है, या चैट बॉक्स में लिख दो तो मेरे को फिर आसानी हो जाएगी। 14 में भी है प्रॉब्लम, 314। अदर स्टूडेंट नीड टू राइट इमीडिएटली विद इन 1 or 2 minutes। Ten, 15, 3, 10, 3, 10, 15, yes. Only 4 students have written 3, 10, 40, 15. 14 is here. Sure, 15, okay. 13 is also. 13, 15, 18. 3, 10, 13, 3, 10, 14, 15, 3, 3, 10, 14, 18, 3, 10, 14, 15. 15,
Okay. Okay, so queries are here 3, 10, 14, 15, and 18. 18 has written or not? Eighteen is not mentioned anybody. Okay. 3, 10, 13 है, 18 नहीं. चलिए. So we see which queries. So query number 3 is add constraint on the attribute degree for the table student such that no null values could be inserted. So Sir, in not this this, third. Sir, not this third. The second, third from the second part. अरे तो भाई अच्छा थर्ड क्वेरी अच्छा यहाँ पर है ठीक है ओके. Yes, sir. Yes. So no query in part 1. Okay. So third query, get list of guides who are guiding more than 2 groups of students. ठीक है. तो एक तो तरीका ये है भाई कि एक जो आपको जो आपने क्लास में क्वेरी पढ़ी है और जो मैंने एक वीडियो 3 वीडियो भेजे, एक वीडियो और भेजना था जिसमें सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन कवर हो जाता है. लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्टली अभी करना चाहें तो भी पॉसिबिलिटी है. गेट लिस्ट ऑफ द गाइड्स हु आर गाइडिंग मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट. ठीक है. तो एक तो क्या है कि व्हाट वी हैव टू गेट इन द रिजल्ट लिस्ट ऑफ गाइड्स. ठीक है. तो गाइड्स नेम और गाइड कोड और बोथ यू कैन टेक इन द रिजल्ट. ठीक है. So we have to see what are the attributes of the guide table, then we will decide. We can take both or only the name. Second, who are guiding more than 2 groups of students. That means the guide is supervising which number of group of the student. Okay, so in our database we should keep the data such that one guide may be supervising 2 or 3 groups. Only then we will get the result, otherwise it will return null. Right. So one thing we have to be careful that sufficient data is inserted in the database or not. Okay. And it is written that the group should be more than 2 groups of students. 2 group, more than 2 group. That means at least one guide might be supervising 3 students. And if you want to get more result, then you can include one more guide that is or that might be supervising 4 students. Okay, and in the result you should have both the names of the guide. So one is count of the projects. Okay, supervised by the student. So one some part somewhere, and this aggregate function will also be used. Okay. So now we see the database now. This is the database. Okay. Guide, supervising. So here one guide can supervise many projects, right? And here this is showing one guide can supervise more than 1 student. And we are interested more than 2 projects. Groups of 2 students, and one group is assigned to one
one project is assigned to one group. Okay, so there may be several groups, and there may also be possible that group is there but it is not assigned to the guide, or the project is not assigned to the group. So that is also one possibility. So our objective here should be the count with the projects. How many projects are there, and those projects are associated with the guide. That means guide is undertaken the project or supervising the project. Okay. So one student can start and share the screen, then we will now this guide and project here, guide and these two are the relevant. Okay, so retrieve guide number and name जो भी आप यहाँ से चाहें, सच तो सेलेक्ट हो जाएगा एंड फ्रॉम दीज टू हो जाएगा, और उसके बाद फिर काउंट वाला इशू आएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए. वन स्टूडेंट नीड टू शेयर नाउ. Sharing my screen. यस, ओके, Yes, sir. शेयर I'm करो. sharing my screen. Other students can also keep ready their systems. If required, I can ask them to share so that other students could also get the opportunity for running the queries. Okay. Is it visible, sir? Yes, it is visible, and I am making it full screen. चलिए. So these are the 4 tables. एक मिनट रुको जरा. हाँ, चलिए. And they are 4 tables. Have you included foreign key successfully and cascade? Sir, I have included foreign keys, but I have not used the cascade constraint. ठीक है, no Like, problem. you can describe these tables. This is the description of guide table. No problem. Okay. Yes. You also keep your microphone close to your mouth, so your voice could be recorded properly. Okay, sir. एक मिनट जरा. हाँ, ठीक है. आप बड़ा कर दीजिए अपना स्क्रीन, जो भी हो सकता है. हाँ, ठीक है, गुड गुड. In database, you have sufficient data for this Yes. query. A group of project, one guide may be assigned at least 3 groups, or better if you take 2 such guides. So your answer will be attractive to somewhat. Yes, sir. I was not able to get what you were saying. Could you please repeat? एक मिनट, इसको ठीक कर. एक मिनट, आपका स्टूडेंट. ठीक है. हाँ, बताइए. अब डाटाबेस थोड़ा दिखाओ. तो इन डाटाबेस आप क्या दिखाओगे? एक तो प्रोजेक्ट में कितना डाटा है, और दूसरा Okay, sir. I'm printing all the
tables. You can select from student. Okay, okay. Only There are 5 records in the student. it is not sufficient Sir, because I'll add more. because in one Initial- group 3 students you keep. So if you take 3 groups, that means 9 students should be at least 9. So at least you should have 12 or 15 students. I'll increase the number. You can repeat with you can repeat records just by changing the roll number. Here group you have added 5 groups. Okay, Yes. you add 2-3 more groups here, Okay, sir. and number of students in a group you keep 3. You have taken 5, 7, 4, 8. I randomly added the numbers. No problem. Now, but you can correct it. Okay, sir. I'll rectify this. If you don't want to correct it, even then there is no problem. Okay, sir. But problem will arise when group and student association. Here what we require, here we require projects and guide association. Yes. So sufficient number of projects and guide. And how you have incorporated this foreign key issue here? Sir, in the table project, the guide number column attribute is a foreign key to the table guide. So only one key attribute may be included in other one table, and it is one-to-one relationship, one-to-many. ये मैं मेरे पास वो नहीं है अभी फाइल, वो आपको बताना पड़ेगा या मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ से? No, sir, it is one to many. A project can be guided by only one guide, but a guide can guide multiple projects. एक मिनट में जरा अपने लेवल पर थोड़ा देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ. Yes. It is one to many, so you will have to keep foreign key guide number in the project table. Have you done so? Sir, could you please repeat? Your voice was breaking. You have to implement this one to many relationship. So on many side in project table, you include guide key. That means guide number in project table. So it is here. So guide number and in project table you see guide number is here. Okay, no problem. So in project table, you keep data, and even if you want to, Excuse me, sir, your voice is breaking. There is a lot of static disturbance. एक मिनट जरा, हाँ आप बताइए, एक मिनट जरा मैं इसको देखूँ. हाँ आप बताओ, एक मिनट. अच्छा मैंने देखा नहीं तो कुछ सेलेक्ट फ्रॉम. हाँ चलिए अब बताइए.
left meeting, yes. ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। So camera off ही था. There was a power cut, so my router went off for a bit. चलिए कोई नहीं। Sir, I wrote this query to retrieve the group guide numbers. एक मिनट, select guide number from project group by guide number having count। हाँ ये भी ठीक है, इसमें But क्या sir, आया? इसमें मुझे ये गाइड नेम इनकॉर्पोरेट करना नहीं आया कि मैं select number guide कैसे- number from project group by group by guide number। तो आपको यहाँ पर गाइड नंबर हैविंग काउंट, ऊपर काउंट लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा कि भाई काउंट ग्रेटर देन 1। क्या है आंसर में? सही आंसर है? सर आंसर तो सही है। प्रोजेक्ट जो मेरा प्रोजेक्ट वाला टेबल है उसके अंदर 115 मोर देन 1 में आया है। उसमें क्या है? 1 और 15 है, 1 है और 15। यस सर, यस सर। Guide number 1 is guiding 2 projects, DSA and machine learning done right, and guide number 15 is Now, okay. databases and Now show the query. Now show the query. So here is the query. Now show the query you have written. Yeah. Select guide number from project. Then group by. Here आपका ऑप्शनल है ग्रुप बाई गाइड से ग्रुप बाई गाइड ठीक है। ये तो सर इसके अंदर नेम साथ में कैसे प्रिंट करूंगा? लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब समझा नहीं। सर जैसे इसमें अभी सिर्फ गाइड नंबर प्रिंट हो रहा है, मुझे साथ में गाइड नेम भी प्रिंट कराना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक मिनट अभी लो। आपने प्रोजेक्ट टेबल को यूज किया है यहाँ पर? यस सर। तो प्रोजेक्ट टेबल में तो गाइड कोड ही है केवल। यस सर, प्रोजेक्ट टेबल में तो गाइड कोड ही है। तो या फिर इसे इस तरीके से कर सकते हैं एक शायद। मिनट, गाइड नेम गाइड नंबर के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा या? यस हाँ वो हो जाएगा आपका। एक मिनट, गाइड नंबर फील्ड है
हैविंग क्लॉज। एक उसमें कंडीशन होता सेलेक्ट फ्रॉम हैविंग, और वो जो उसमें एक जो एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो है हैविंग के संग आपने क्या यूज किया है कंडीशन क्या? तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया ना। नहीं तो हैविंग कंडीशन लगाई है ना आपने, हैविंग कंडीशन लगाई है। नो सर, मैंने तो ग्रुप बाय कंडीशन लगाई है। नहीं, This ग्रुप was बाय the क्लॉज, query. ग्रुप बाय क्लॉज के हाँ बाद ठीक है, having, हाँ यस सर, हाँ, having having- count guide number greater than ठीक है। तो ये हैविंग काउंट जो है ये एग्रीगेट फंक्शन है गाइड यस सर। गाइड नंबर का काउंट हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने गाइड नंबर वहाँ लिखा हुआ है कुछ फाइनल जो ऊपर सेलेक्ट गाइड नंबर आपको है तो यहाँ पर ठीक तो है, तो गाइड नंबर ही आएगा। अब यहाँ आपका रहा कि जो है गाइड नेम, यस सर। एक मिनट अभी तो आप यहाँ गाइड नेम कर दीजिए, सेलेक्ट गाइड नेम कॉमा करके, इसमें फिर देखना चाहिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गाइड नंबर के बाद कॉमा के गाइड नंबर से पहले, गाइड नंबर से पहले हाँ यहीं पे गाइड नेम लिखिए आप। सर। हाँ देखो, बट उस टेबल में, प्रोजेक्ट वाली टेबल में गाइड नेम तो है नहीं सर। नहीं करो करो पहले एंटर करो अननोन फील्ड लिस्ट कॉलम प्रोजेक्ट वाली गाइड टेबल में गाइड नेम तो है नंबर नहीं। एक। अच्छा, जो गाइड नंबर लिखा है आपका, जो गाइड वो फ्रॉम करके लिखा है ना आपने सेलेक्ट sir. फ्रॉम, वहाँ पे एक ये टेबल और डालो गाइड 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 वाली, हाँ गाइड बस। अब सर वो एम्बिगुअस देगा क्योंकि गाइड नंबर एट्रीब्यूट नेम दोनों टेबल में सेम है। हाँ अब ये एम्बिगुअस वो देगा रेफरेंस, बिकॉज़ जो प्रोजेक्ट और गाइड दोनों के अंदर गाइड नंबर एट्रीब्यूट सेम है। नहीं तो यहाँ पे एक और है वेयर करके, वेयर जो उन दोनों की कंडीशन है ना, जो दोनों टेबल में जो कॉमन है जिस पे वैल्यू सेम है वो क्या है, गाइड नंबर की है ना, प्रोजेक्ट नंबर Yes, की sir. किसकी है? गाइड नंबर की सेम है सर दोनों आप में। वो करो यहाँ पर बस, हाँ उसी में कनेक्ट हो पाएगा ना। फिर प्रोजेक्ट गाइड नंबर इज इक्वल टू, हाँ हाँ, उसके बाद हैविंग करके लगा दो जो भी है। हैविंग क्लॉज उसके बाद आएगा। है ओके सर। हैविंग इसके बाद आएगा, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद हैविंग क्लोज, वो नहीं वो ग्रुप बाय एंड हैविंग। गाइड नेम, पहले आपने प्रोजेक्ट नंबर लिखा था ना, नो सर, मेरा प्रोजेक्ट नंबर लिखा, गाइड नंबर। तो जो काउंट इज ग्रेटर देन करके लिखा है वो किसका है वो? यस सर। तो काउंट यहाँ पे एग्रीगेट में काउंट है, गाइड नंबर काउंट गाइड। सर ये प्रोजेक्ट टेबल पे जब क्वेरी लग रही है उसका है, जैसे जो मैंने अभी फिर से क्वेरी लिखी है। एक मिनट काउंट, ये जो गाइड नंबर है ना ये किसका है, प्रोजेक्ट टेबल का? यस सर, प्रोजेक्ट तो टेबल। आप ऐसा करो वहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल और इंक्लूड करो, सेलेक्ट फ्रॉम लेयर में, सेलेक्ट फ्रॉम में एक प्रोजेक्ट टेबल है आपकी, क्या क्या है प्रोजेक्ट का गाइड है। जो क्वेरी रिजल्ट दे रही है गाइड नंबर वाली टेबल का, वो उसमें गाइड नंबर में सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट टेबल से, और फिर ग्रुप कर रहा हूँ गाइड नंबर्स को ऐसे जगह पे जिनका काउंट ग्रेटर देन 1 हो। नहीं ऐसे नहीं समझो पहले, Yes. एक बार ये आपने रन किया है ना, तो इसके हिसाब से जो आपने गाइड काउंट वाला एग्रीगेट फंक्शन का जो एट्रीब्यूट है ना, Yes, that you have written here guide number, So उसको प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर कर दो।
तो वो तो ठीक है, उसके हिसाब से केवल वही आपको इंक्लूड करना है। आपका नेम वाला तो इसमें है नहीं कहीं कुछ, ठीक यस है। सर। तो उसके लिए है कि सेलेक्ट, यहाँ पे अगर आप गाइड नेम करते हैं तो फिर फ्रॉम क्लॉज जो आएगा उसके अंदर वो रिलेवेंट टेबल्स हैं या नहीं है। तो फ्रॉम क्लॉज के हिसाब से इसमें एक गाइड टेबल बनती है और एक आपकी प्रोजेक्ट बनती है, ठीक है। यस सर। उसके बाद वेयर क्लॉज का इशू आता है। वेयर यस में सर। वो जो दोनों को ज्वाइन करने के लिए कंडीशन या कोई और तीसरी कंडीशन है वो उसमें आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये आप लिखो पहले, चलो देखते हैं। सेलेक्ट, यस सर। ठीक है। आपको गाइड नेम चाहिए, गाइड नेम लिख दो यस सर। और उसके बाद कॉमा लगाओ। प्रोजेक्ट काउंट वाला जो है ना वो लिखो, इसमें कौन सा काउंट है, जो काउंट के संग गाइड नंबर है, गाइड नेम गाइड नंबर आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाओ, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एक इन क्लॉज करके आप यूज करते हैं उससे भी हो जाएगा आसानी से। अब वो मेरे को याद नहीं कैसे यूज करना है वो। सर इसमें नाम चेंज करके देखूं मैं, जो प्रोजेक्ट टेबल है उसमें गाइड नंबर एट्रीब्यूट को सिर्फ गाइड कर देता हूं तो एम्बिग्यूटी चली जाएगी क्योंकि नेम डिफरेंट जाएगा। पहले लिखो आप सेलेक्ट सेलेक्ट गाइड नंबर गाइड नंबर गाइड नेम कॉमा लगाओ, गाइड नेम ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम टेबल लिखो गाइड एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एंड गाइड, वेयर। वेयर अब आप लिखिए गाइड नंबर और दोनों में गाइड नंबर सेम है। अब देखो यहाँ दोनों का गाइड नंबर सेम हो तो प्रोजेक्ट गाइड नंबर इक्वल टू, ये थोड़ा ऊपर कर दो स्क्रीन को, विजिबल थोड़ा हो जाए। नहीं स्क्रीन को ऊपर करो थोड़ा, सर वो तो नीचे गया कर्सर से होगा, यहाँ से कर्सर से ऊपर, नहीं ये नीचे से ऊपर हो जाए थोड़ा। नहीं होगा सर वो। अरे होता भाई, यहाँ से होता है। ये पहले छोटा करो, पहले आपने बड़ा कर दिया फॉर्म को। अरे ये नहीं, ये जो नीचे है नहीं, ये जो सबसे इधर ये कर्सर से मूव करता है ऊपर नीचे जो राइट, हाँ ये यहाँ इससे होता है। हाँ इसको ऊपर नीचे करो, नहीं भाई इस पर रखो, ये यहाँ सर इसको ऊपर नीचे करूँ तो ऐसे होगा वो। हाँ ये हाँ यही करो। कर रहा हूँ नीचे नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा आपको 2-3 ऐसे ही एंटर करने पड़ेंगे तो हो जाएगा, ब्लैंक एंटर करेंगे तो अच्छा नीचे ही रहेगा फिर ये। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेलेक्ट गाइड ठीक है। इसके बाद एंड गाइड नंबर नंबर करो, डॉट भी लगेगा यही। अच्छा इसके बाद लिखो एंड, एंड ठीक है। अब एंड में आपकी क्या कंस्ट्रेंट बचता है, क्या क्या है कि जो एक तो गाइड नंबर जो है, जो प्रोजेक्ट है क्या जाना, एक से ज़्यादा और क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा काउंट गाइड कर रहा हूँ। गाइड करे ना एक से ज़्यादा। यस सर। तो
गाइड एक से ज़्यादा करे तो ये इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में है ना, गाइड में तो यस नहीं, सर। प्रोजेक्ट में है, ठीक है। एंड तो मेरे को एक मिनट देखने दो, मेरे को जरा है इसका देखता हूँ। तो ये जो गाइड नंबर आएगा ना यहाँ पर, सेलेक्ट के बाद ये प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर आएगा सेलेक्ट के बाद। प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर आएगा। अब आप आ जाइए जो आपने जो पहले यूज किए थे, एंड डालो और वो ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज लगा दो। ग्रुप बाई जो आपने पहले लिखा था वही ले आओ। प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर आएगा सर यहाँ पे। ग्रुप बाई जो आपने पहले लिखा था, ग्रुप बाय गाइड नंबर लिखा था सर, तो यहाँ पे फिर से ग्रुप बाय प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर, प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर हो जाएगा ना वो। ग्रुप बाई प्रोजेक्ट गाइड नंबर हैविंग, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर। हाँ, ये काउंट लिख दिया ग्रेटर देन 1। आप देखो, हाँ देखो क्या आता है। आ गया सर। हाँ, भगवान का नाम लो क्या। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन। एक्चुअली देखो, पहले तो ये समझ लो, यस सर। ये क्वेरी आइसोलेशन में आप नहीं लिख सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, स्कीमा होना चाहिए, डाटाबेस होना चाहिए कागज प्रिंटेड, ठीक है। और उसको इधर देखना पड़ता है, फिर इधर जो आप लिख रहे हैं दो चीज़ें तो चाहिए साथ में। फिर आपने जो क्लॉजेज यूज़ किए हैं उनको कितना प्रैक्टिस किया तो इससे वो मेमोराइज हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया है, ठीक है, कागज भी नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्लॉज आपको मेमोराइज हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जब आप स्कीमा सामने रखते हैं तब फिर जो है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेरी आपकी ये हो गई। तो एक क्वेरी यहाँ पे लिखी तो थी इसमें, मतलब वो जो वेयर क्लॉज मिसिंग है इसकी वजह से इस क्वेरी ने वो दिया था एरर। क्या चीज? जो ये क्वेरी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाँ, इस क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज नहीं है, इस वजह से इसने ये एरर दिया था यहाँ पे, या फिर वो काउंट के अंदर की वजह से? नहीं, इस एरर को अगर मालूम करना तो उसका तरीका है कि इन व्हाट ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लॉजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो उसमें पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है और उसके हिसाब से फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो आपने लिखा सेलेक्ट प्रोजेक्ट गाइड नंबर एंड गाइड नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट गाइड ग्रुप बाई गाइड having found गाइड नेम। ये वेयर क्लॉज इसमें नहीं है? नो सर। हाँ, ये वेयर क्लॉज ना होने की वजह से गाइड डॉट गाइड नेम ने एरर दिया, बिकॉज़ ये फॉरेन की नहीं ऐसा ना, जो वेयर क्लॉज है यस सर, तो थॉर्टिकली क्या दो ऑप्शन है इसमें कि जैसे ही आप फॉरेन की इंक्लूड करते हैं तो वेयर क्लॉज डिफाइंड हो जाता है उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एट्रिब्यूट से। अब वो ये पता नहीं इम्प्लीमेंटेशन में जो माई एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन है उसने क्या तरीका अपनाया है। तो दूसरा ये है कि वो वहाँ डिफाइन किया है या होता नहीं होता है, यू एक्सप्लिसिटली राइट इन द वेयर क्लॉज। अब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्या है कि सेलेक्ट के बाद जो फ्रॉम क्लॉज लिखते हैं तो वो जॉइन ऑपरेशन बताता है कार्डियल प्रोडक्ट, तो कार्डियल प्रोडक्ट होता है। लेकिन आपने फॉरेन की जो इंक्लूड की है तो उसके हिसाब से तो होना चाहिए। और या तो फॉरेन की वहाँ पर जो डिफाइन तो की है वो, अगर वो ठीक से समझा जाए तो फॉरेन की वंस यू डिफाइन तो वो कंडीशन भी डिफाइंड हो जाना चाहिए।
अब ये पता नहीं, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप भाई वो कंडीशन लिख दीजिए। तो कंपाइलर का रीडिंग प्रोसेस है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से पढ़ लो भाई, ठीक है। अब वो जो तरीका है कि स्कीमा जो आपने डिफाइन किया, टेबल डिफाइन किए हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट के कंस्ट्रेंट लगाए, उसके हिसाब से तो वहाँ डिफाइन हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो सेलेक्ट फ्रॉम, तो फ्रॉम में जो आप कौन सा ज्वाइन ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे वो हो जाए, तो जैसे यहाँ पे ज्वाइन आएगा ज्वाइन ऑन, और जो आपका एक और तरीका आप कर सकते हैं, फ्रॉम की ये लिख दीजिए आप ज्वाइन ऑन, और ये वाला एट्रीब्यूट है आपका गाइड। इसी क्वेरी को दोबारा लिखो, कॉपी पेस्ट करो पहले, फिर बताता हूँ। ऊपर वालों को कॉपी पेस्ट करो, ये जो अभी क्वेरी लिखी थी ना उसको पहले कॉपी पेस्ट करो, जिससे रिजल्ट आया। यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, फिर बताता हूँ। अब देखो सेलेक्ट फ्रॉम गाइड नंबर, अब ये फ्रॉम क्लॉज है ना, फ्रॉम क्लॉज में लिखो प्रोजेक्ट, हाँ फ्रॉम में प्रोजेक्ट, यहाँ लिखो नेचुरल ज्वाइन करके, कॉमा हटाओ, नेचुरल ज्वाइन ऑन, नेचुरल ज्वाइन ये हो गया गाइड, जो टेबल नहीं ये बाद में आएगा, ऑन बाद में आएगा, पहले नेचुरल ज्वाइन उसका नाम लिखो, गाइड टेबल हो गई, यहाँ लिख दो ऑन, ऑन और एट्रीब्यूट लिखो, एट्रीब्यूट हाँ ये हट जाएगा, एट्रीब्यूट गाइड नंबर लिखो यहाँ, गाइड नंबर, बाकी वेयर क्लॉज का हटा दो, सब कुछ वेयर क्लॉज हटा दो अपना, ठीक है। अब देखो एंटर कर दे इसको, सर्वर वर्जन क्या लिखा है, यू हैव एन एरर, योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द एनुअल करस्पॉन्डिंग योर माई एसक्यूएल सर्वर वर्जन, द राइट सिंटैक्स ऑफ यूज ऑन गाइड नंबर ग्रुप बाई। अब इसमें क्या है, जो आपका ऑन गाइड ऑन, इसमें जो हमने जो वो दिया है ना नियर, ये जो ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन है उसका सिंटैक्स क्या है लिखने का, ये आपको देखना पड़ेगा। जो इसमें सिंटैक्स कैसे देखोगे, आप गूगल पे आना पड़ेगा, नेचुरल ज्वाइन इन नेचुरल ज्वाइन लिखा तो नेचुरल ज्वाइनिंग ना एसक्यूएल एग्जाम, नेचुरल ज्वाइन के साथ शायद ऑन क्लॉज नहीं आएगा, टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2 ऑन करके नहीं है इसमें शायद, तो ऑन नहीं आएगा, ऑन हटा दो तो अपने आप वो ले लेगा, या तो नेचुरल ज्वाइन टेबल 2 यही कर दो, चलो ये हटा दो, हो गया ऑन हो गया, हाँ यस सर, ठीक है, दो तरीके से हो गई तो सर एक क्वेश्चन और था। यस सर, हाँ बोलो सर आपने वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी फॉरेन कीज कैन देयर बी इन अ टेबल। हाउ, एक मिनट आवाज आपकी थोड़ा ठीक नहीं आ रही। हाँ सर आपने वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी फॉरेन कीज कैन देयर बी इन अ टेबल। अच्छा, तो उसका आंसर क्या है सर? आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, हाउ टू काउंट। सपोज देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स, ओके, यस सर, फॉर एग्जांपल ये टेबल ले लेते हैं, ठीक है। 4 एट्रीब्यूट में यू हैव 1 एट्रीब्यूट प्राइमरी की and Yes, the sir. rest 3 attribute are the simple attribute. Now we have several possibilities of foreign key.
Now, the three attributes can also be defined as foreign key on primary key. Yes, sir. There can be one attribute that can be defined foreign key on the primary key of the table itself. Second possibility, the three attributes, they can be treated as three foreign keys having primary Three key different. attributes here or from different tables. Yes, sir. Okay. Second possibility, by combining two attributes, we can have one key attribute, okay, and we can have only one foreign key. Composite attribute. Composite key. Yes, sir. Composite key हाँ. को foreign key से वो करा We दिया. can also have composite attribute as foreign key. So one can also have one primary key, and all three attributes can be made as one foreign key as composite. Suppose there are two tables. In one table, one primary key attribute and three simple attributes. And another table, we have three attributes, and all three attributes are the composite primary key they are making of that table. Okay. And there is no other attribute, only primary key with three composite. Now, this first table can make the earlier table where three composite attributes were working as a single primary key can be treated as foreign key. So, in that case, there is only one foreign key, and all the three attributes have been engaged. Right? So foreign key is a one constraint. It is not necessary. It is defined or it is using primary key of other table. It can also use its own table. Okay. Now question arises here: which database management system has provided this facility or not? So we have to see what database management system is supported. So SQL standard also have several different variants. This standard has, this standard does not have. And my database management system is complying this SQL standard or this not. So those kind of issues have to be considered. So answer is like that. So, sir, in this way we can say कि अगर एक टेबल में n attributes हैं तो there can be n-1 maximum number of foreign keys. No, there are n attributes. Okay, so one maximum limit, minimum limit we can define. So I was saying maximum. That Maximum, there can be maximum. Maximum there can be one foreign key. Minimum, if there are n attributes and one attribute is the primary key, then the rest n-1 are the simple attributes. So all the simple attributes are making one collectively foreign key. So minimum there can be one foreign key, and maximum we have several options. One option can be if each individual attribute is referring to one primary key of some other table, okay, or the same table. So n-1 such foreign key are possible. So maximum can be n-1. Now between these two values, what are the possibilities? Two attributes collectively might be acting as one foreign key. So the value will range from 1 to n-1. n-1. Okay, but right now I have this knowledge, but if some scope of improvement is there, then I have to see the literature, but it is answer from 1 to n-1. Generally, in practice, we prefer only binary relationship, and more than binary when we try to make then several computation complexity and computation time join operation will takes or becomes time consuming. Okay, so generally binary relationships are used. Okay.
Now, next question, next query, that is after 3 we have 10. What is the 10th query? List all projects completed in the year 2019. एक मिनट. 10th query, list all the projects completed in year 2019. यही है ना? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. So now we go to the list of all projects. Now we see the project. These are the projects. This is the project, and project completed in year 2019. 19. Okay. So this is the project year and month. Here you have to write that time type attribute. एक तो ये तरीका है. ठीक है. Second, you can only if you are entering or we are considering this attribute as two attribute. One is for year and one is for month. If you don't want to use time type, other possibility we can consider both attribute as numeric type, integer type, and one attribute can be for year and other attribute can be month. Month will be here 1 to 3 up to 12, or if you want to make January, February, then it should be corrected type. Okay. So here in this query only the year is required. So what kind of type definition for the attribute you are considering in your table definition? Okay. So now show me the table definition of the project, then we will talk. So describe project. Date type दिया है. Now date type, there are several different versions of date. So which date type is here we are using? Sir, Only I have then. added YYYMMDD type of date. By 4 times. Yes, sir. YYYYY. Now YYYYMM and now, DD type of date. now you For example, take the data. Okay. I have written this query. Take. Select project title from project year, extract. Okay, year from project year. Select project title. What was the query? How many? क्या था? एक. The query was how many projects are completed in the year 2019? एक मिनट. List the project completed 2019. So here you take year also, then it will be good. In select you write year and corresponding this. So how you can go for it? Select year. Year कैसे करोगे? Project year month. Either this. हाँ चलेगा, ये भी ठीक है. हाँ you have extracted. ठीक है. So type attribute type this operation is use extract to take. तो एक मिनट जस्ट वेट. यहाँ लिखा है आपने सेलेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल, एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम. हाँ ठीक है. ईयर मंथ एज ईयर वेयर एक्सट्रैक्ट दिस इक्वल टू 2009. ठीक है, ये भी है. So this query is also completed. 10. Now we go query number
13. What is 13th query? List names of all students who have their projects in the project area artificial intelligence. So here we have to write name of all the students. So एक तो क्या है कि project area is AI and this area is with it is associated with the guide area. तो देखो क्या है project में, this is project area, right? और एक guide area अलग है. I had written this. The guide area अलग है. मैंने Guide area is for different. this. Okay. Yes, sir. So project area. So this attribute value should be here. Yes. ठीक है, and value should be AI. अब क्या निकालना है हमको? Name, student name. Name of the students. ठीक है, तो अब ये देखिए प्रोजेक्ट का ये 1 to many, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा. Yes, sir. Yeah, this is the query. सेलेक्ट स्टूडेंट्स और Select चाहो name. तो प्रोजेक्ट नेम में लिख दीजिए फ्रॉम सेलेक्ट स्टूडेंट, और जो एरिया भी था एरिया लिख दो तो थोड़ा क्वेरी देखने में ठीक लगेगा. Select name from student, comma project, where student dot project number is equals to project dot project number and project dot project area is AIML. एक मिनट यहाँ पे आप देखने दो, एक मिनट रुको. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, वेयर स्टूडेंट प्रोजेक्ट इक्वल टू प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट एरिया इक्वल टू ये, ठीक है. अब इसमें अगर आपको ये रिजल्ट में वो भी लाना है, सेलेक्ट नेम के साथ आप वो भी लाइए प्रोजेक्ट एरिया. सेलेक्ट प्रोजेक्ट एरिया लिख दो पहले, फिर बाद में नेम लिखो. तो थोड़ा देखते हैं, प्रोजेक्ट एरिया लिख दो. ठीक है, यही है रिजल्ट. Yes, sir. हो गया. See the table. Project number 3 and project number 5 are in Five. Artif AIML. ठीक है, So here is the student table. ठीक है. Project number तो 3, इसमें जो है, project number 5. इसमें हमने क्या यूज किया, तो स्टूडेंट टेबल और प्रोजेक्ट टेबल, दो टेबल यूज किया आपने. Yes, sir. तो foreign की जो तो project table की foreign की को रेफर कराया. ये आपने यहाँ पे लिख दिया फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट. Yes, sir. सेलेक्ट ये फ्रॉम ये वेयर, ठीक है. अब आप आइए क्वेरी नंबर 14. एक बार पहले पढ़ता हूँ यहाँ पर 14 को. List names of the guide with their project, with their project area. तो ये तो एक ही टेबल लग रहा है इसमें. No, sir. गाइड में ही आप देखिए, गाइड से ही हो जाएगा ये. Guide table में there was research area, but a particular guide can also guide a project in some other area. लेकिन इसमें ये क्वेरी थोड़ा गलत हो गई है, तो क्योंकि इसने जो क्वेरी में पूछा है 14 है ना, ये 14 है. लिस्ट नेम ऑफ द गाइड्स विद देयर प्रोजेक्ट एरिया, तो Yes, sir. विद So- देयर प्रोजेक्ट एरिया लिखा है ना, तो इसका So मतलब their ये- project, तो their इसमें project, yes, sir, their project तो लिखा है, but जो project table है उसके अंदर कोई एक particular project हुआ, वो भी तो इन्हीं का project हुआ, and there is any guide is supervising a project, ठीक है, yes, sir. and the area of the project is the project area. Yes, sir. So first of all, the guide is supervising to which projects, and the project area of those projects have to be displayed. Yes, sir. और गाइड का अपना एरिया है, दैट इज डिफरेंट.
Yes, sir. That is different. So here we have project area and second name of the guide. Yes, sir. Okay. Now you see the information project is what. I have used the foreign key concept. These are the project areas are. In project table, guide information is also there. Yes, sir. You see here in project guide number is there. And guide name चाहिए हमको. Yes, sir. Guide name तो चाहिए और हाँ तो ठीक है. तो प्रोजेक्ट एंड गाइड को आप ले लीजिए. तो टेबल वही को लिया सर. Yes, sir, वही लिया. फॉरेन की कंस्ट्रेंट आप ले आइएगा और उसके बाद फिर आप 1 मिनट. अच्छा ये लिख दिया आपने. Yes, sir. रुको 1 मिनट जरा मेरे को सेलेक्ट बड़ा करके इसको करते तो अच्छा रहेगा. हाँ ठीक है. रुको सेलेक्ट रुको सेलेक्ट गाइड नेम प्रोजेक्ट एरिया फ्रॉम गाइड प्रोजेक्ट गाइड नंबर. ठीक है. अब आप देख लीजिए यही लोग हैं जिनको गाइड कर रहा है आदमी. तो ये कहाँ मिलेगा आपको? स्टूडेंट टेबल में मिलेगा. कहाँ मिलेगा? देखो गाइड नेम गाइड टेबल में और प्रोजेक्ट एरिया प्रोजेक्ट टेबल में. तो ठीक है. यही आंसर है. इट इज ऑल्सो करेक्ट. So 14th is over. Now we come to query number 15. फिफ्टींथ क्वेरी क्या है मैं पढ़ देता हूँ. जस्ट वेट. वेदर प्रोजेक्ट 7 बाय गाइडेड बाय डॉक्टर एसकेएन इन दिसंबर 2002. ये तो इस तरह का आंसर तो देना मुश्किल है डायरेक्ट. ठीक है. तो आंसर यस नो जैसा ऐसा तो ये देगा नहीं कोई आंसर. ऐसा नहीं हो सकता सर. ऐसा कैसे मिलेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही डाउट था कि कोई बूलियन रिजल्ट जनरेट करने वाला क्लॉज होता है या नहीं होता. नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट 7 हु इज गाइडिंग. देयर इज वन प्रोजेक्ट 7 ना यूनिक एंड हु इज गाइडिंग. वेदर प्रोजेक्ट 7 इज गाइडेड बाय. तो गाइड अगर ये है और ये ईयर मंथ है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस टेबल. तो प्रोजेक्ट को देखिए आप. 3 टेबल्स का हो गया ना. नहीं 2 टेबल्स का प्रोजेक्ट एंड गाइड. प्रोजेक्ट एंड गाइड एंड इट इज 1 to many. तो प्रोजेक्ट टेबल को आप यूज कर सकते हैं और इसमें सीधा जो है तो प्रोजेक्ट ये हो गया और गाइड हो गया. इन 2 टेबल से हो जाएगा. तो लाइए सेलेक्ट में क्या लिखना है लिखो. सेलेक्ट गाइड नेम प्रोजेक्ट टाइटल. प्रोजेक्ट टाइटल नहीं आ पाएगा इसमें. चलो ठीक है. तो हम प्रोजेक्ट गाइड वेयर. एक तो फॉरेन की वाला जो कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई कर दो इसमें. दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गाइड नंबर. तो गाइड नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट इक्वल टू गाइड नंबर ऑफ द गाइड. यही है देखो. गाइड नंबर आई विल नॉट एबल टू गेट यू. गाइड नंबर ऑफ द गाइड एंड प्रोजेक्ट नंबर ऑफ द गाइड. वेयर क्लॉक में आप ले आओ. वेयर गाइड टेबल डॉट गाइड नंबर इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट गाइड नंबर.
ठीक है, और कौन सी कंडीशन है? एंड ईयर भी है, एक्सट्रैक्ट ईयर मार्च क्या है? फ्रॉम प्रोजेक्ट ईयर मंथ। ठीक है, अब इसमें शुड बी, हाँ चला गया आपका, आ गया। ठीक है, एक मिनट चला, एक मिनट देखने दो। दोबारा कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? कल कुछ से मैंने एरो की दबा दी, सो वो डिलीट हो गई। एक्सट्रैक्ट ईयर इक्वल टू, एंड कर देना पड़ेगा, मंथ भी है ना, कैसे लगाओगे इसमें? ये आपने एक्सट्रैक्ट करके, ये कैसे होगा इक्वल? whether this operation is allowed, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। I have used it. You have used it. Yes, sir. Extract year from project year month is equal to 2019. हाँ, तो ईयर का होगा, मंथ का भी तो है उसमें। मंथ का भी ऐसे हो जाएगा सर, सेम। करो, चलो एंड करना पड़ेगा। हाँ, एक्सट्रैक्ट ये प्रिंट सर, आई डोंट नो इसका क्या आएगा रिजल्ट, स्ट्रिंग रहेगा कि नंबर? एक मिनट, मंथ इसमें क्या है देखते हैं। मंथ है इसमें दिसंबर है। हाँ ठीक है, एंटर कर दो, एम्प्टी। अब ऐसा कोई है नहीं सेट, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक इस तरह का ट्रिपल इंसर्ट कर दीजिए और फिर देखिए इससे रिजल्ट आता नहीं आता। इंसर्ट प्रोजेक्ट में क्या क्या करें? हाँ, प्रोजेक्ट में आप करो, तो पहले से इंसर्टेड डबल है, उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करा देता है। उसको एडिट कर रहे हो? नहीं, जो पहले से जो क्वेरी थी ऊपर, हाँ, उसके अंदर जो मैनुअल में गिवन है वो वाले वैल्यूज ना लेके जो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किए हुए वो वाले वैल्यूज डाल रहा हूं। नहीं, आप ऐसा कीजिए, उसमें जो पॉसिबल एट्रीब्यूट है, हाँ पॉसिबल वैल्यूज है, ये आ गया। हाँ, अब देखो ये वही वाला है, उसमें जो प्रोजेक्ट टेबल कौन सी है, ऊपर है ये। तो इसमें एक बार जरा वेट करो, ये आपने मंथ डेट दे दिया इसमें, ईयर आपने दे दिया 2021, ठीक है। और आपने जो है एरिया भी है, कुछ नहीं, गाइड नेम का कंस्ट्रेंट नहीं दिया इसमें, वो दे देता हूं। गाइड नेम नहीं है, हाँ, तो गाइड नेम अगर आप डालते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, तो वही नाम डालना पड़ेगा, तभी आप आएगा। ये तो आएगा नहीं, ये एम्प्टी सेट होगा। हाँ, वो वाला नाम डालें, अगर वो नाम डाल देता तो देखो आते हैं, नहीं आते हैं। अलेक्जेंडर हो गया। तो ये भी आसान क्वेरी था। यस सर। नाउ वी हैव क्वेरी नंबर 15। ये क्वेरी नंबर 15 था सर। 15th क्वेरी इज, यही तो थी सर। 15th क्वेरी है वेदर, ये तो ये 15th ही था ये तो। यस सर। तो अब कौन सी बचती है? सारी क्वेरी हो गई? यस सर। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया। ठीक है, चलो।
So we close meeting now. Just एक I have one last question. हाँ. जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने ये टपल प्रिंट कराया एंड लगा के क्वेरी में डाल के सब कुछ बूलियन वैल्यू रिजल्ट करने का क्लॉज नहीं होता. बूलियन मतलब यस या नो टाइप की वैल्यू रिटर्न करने का क्लॉज होता है एसक्यूएल में. यस और नो का. यस सर. यस नो. आप चाहते हैं कि ये आंसर में यस और नो आए. जैसे जो 15th क्वेरी जिस तरीके से लिखी हुई है उसमें यस और नो का आंसर चाहिए हमें. नहीं वो तो फिर दो चीजें हैं. डाटाबेस में यस और नो करके कहीं इंसर्ट है नहीं है. तो फिर ये वैल्यू आउटसाइड किसी कंडीशन पर ये डिफाइन करनी पड़ेगी. अगर ये सेटिस्फाई जैसे नल आ रहा है ना तो आंसर इक्वल टू नो. ठीक है. तो ये देखना पड़ेगा ये है या नहीं. तो ऐसे होता नहीं है डाटाबेस में. डाटाबेस में क्या है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है. तो डाटाबेस का जहाँ तक क्वेश्चन है वो तो इतना ही है. इसके लिए एक और तरीका होता है PL/SQL करके. हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL जो भाई ये जो ओरेकल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो उसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर SQL के कंस्ट्रक्ट यूज करके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं. तो इन दैट केस ये हो सकता है. दूसरा ये कि जब हम प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं SQL को तो तब यूज होता है ना कि जावास्क्रिप्ट या C++ या जावा टाइप की लैंग्वेज में मैं डाटाबेस क्वेरीज लिख रहा हूं डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन. नहीं, तो डाटाबेस तो केवल आपको रिटर्न करेगा नल. यस सर. तो उस नल के केस में यस और नो को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेस करती है. प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है. एक तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कर सकते हैं. ठीक है. प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं. तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होगा ना. डाटाबेस का पार्ट तो नहीं हुआ. डाटाबेस का पार्ट तो जब है जो डाटा आपने स्टोर किया है वो रिट्रीव कराना. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डाटा रिट्रीवल. तो डाटा रिट्रीवल तो है. अगर आप चाहते हैं इट शुड बी अ यूजफुल इंफॉर्मेशन तो आप उसको चाहते हैं नो. तो वो आपको प्रोग्राम का पार्ट देखना पड़ेगा. और बाकी कोई दूसरा फीचर है तो मेरे को भी देखना पड़ेगा. ठीक है. अभी तक मेरा इतना ही है. लेकिन कोई ऐसा नया इस तरह का आया है तो मेरे को देखना पड़ेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. डाटाबेस का जो प्रिंसिपल है और डाटाबेस का जो थ्योरी है उसको रिटेन रखना पड़ता है. नहीं तो मालूम पड़ा कि एक डाटाबेस सब्जेक्ट है उसमें प्रोग्रामिंग और सब कुछ मिल जाएगा तो सब्जेक्ट का नेचर ही बदल जाएगा. तो चीज़ों को ऐसे रखते हैं. अब देखते हैं. पता नहीं. ठीक है. तो शुड आई क्लोज मीटिंग नाउ? यस सर. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.